साई सुहागण साई भागण, जय फिर कृपा धारी। फिर औगण जिसके सब गवाए, गल सेती लाए सवारी। कर्महीन तन करै बिनती, कद नानक आवै वारी। सब सुहागण मानह रलिया, इक देवो रात मुरारी। कर्महीन तन करै बिनती, कद नानक आवै वारी। सब सुहागण मानह रलिया, इक देवो रात मुरारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी निੱਘੀ गोद विच जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे खालसा साध संगत जीओ। आप जी वड्डियां भागां वाले हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सत्संगत करके सतगुरु जी दीयां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। आओ हुण साडे कोल बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी राजस्थान वाले पहुंचे ने। उन्हां पासों आपां शब्द की विचार श्रवण करिए। भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। धन वाहिगुरू जी, सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जीओ। मूक गुजरै शास्त्र खट, पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै, जो काल कृपा कराए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, वर्ण सकै महिमा जोधहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिखो तुम कथा सुधारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिखो तुम कथा सुधारी। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी वडभागे हाँ। पातशाह जी ने कृपा की सत्संगत करने का सुभाग समा बख्शिश किया है। जितना समा पातशाह जी सानू बख्शते हैं, गुरबाणी राही अकाल पुरख की सिफत सलाह वडियाई करने का यतन करिए जी। सर्व विचारों की रमता तो पहला साहिबे कमाल धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बख्शिश की हुई फतेह की आपस में पाइए सांझ। कोई भी रसना वांझी ना रहे, प्यार सत्कार से बोलियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मंगलाचरण तो बाद जिहड़ा शब्द आप जी ने भाई साहब की रचना को सरवण किया, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के 959 अंग के उत्ते सुशोभित है। पंजवें पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का उच्चारण किया हुआ शब्द मूल रूप के आप समझने की कोशिश करिए। पातशाह किस ते परथाए बेनती कर रहे हैं। इत्थे जीव इस्त्री की गल चल रही है, जिसे गुरबाणी के विच लिखा है, इस जग में पुरख एक है और सगली नार सदाई। कि पुरख कौन है? अकाल पुरख परमात्मा एक कोई है। आप सारिया जीव रूप स्त्री हैं। कल
ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੋ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਸਟ ਪਰਸਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਰਖਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਬਹੁਤਾਤ ਬੁਰਾਈ ਆ ਕੇ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਮੰਗ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਸ ਜੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਚੜਾਉਣੇ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਰਾਉਣੀ। ਜੇ ਉਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਾਚ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਕੁਝ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਜੇਕਰ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਆਪਦੇ ਸਮਾਨ ਵਾਲੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਫਾਈ ਮੰਗਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈ ਫਾਈ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦੇ ਦੇ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਢੀਠ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਸੀਸਾ ਪੁੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੁਮਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਕਰੀਏ? ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਮੰਗਲਾ ਚੰਦ ਪੜਿਆ ਨਾ ਹੁਣੇ, ਹੁਣ ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ
मिलता है। इत्थे आके आखदा कर पातशाह मेरे ते भी कृपा कर दिओ, मेरे ते भी मेहर भरे सिर ते हथ रख दिओ, मैं भी गुरमत का प्रचार करन लग जा। मंगीए तो सही ना, दास बेनती कर रहा सा भी आपां सतगुरां दे दर ते सारे मंगते हैं, मंगांगे वो मिलता है। आपां दुनियावी चीज़ां मंग के मुड़ जाते हैं, जिन्हों पातशाह ने लिखा जी जे नाम तो छुट जेकर आपां दूजियां चीज़ां मंगते हैं तो अपने वास्ते आपां तां मिठाई दुख सेड़ लिया। की कहते पातशाह, कहते पिंड तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख दे नाम संतोखिया उतरै मन की भुख। कहते परमात्मा के नाम तो छुट जेकर आप दूजिया चीज़ां मंगते हैं सतगुरां कोल आके अकाल पुरख के चरणों को बेनती करते हैं। देखो अकाल पुरख परमात्मा की करता है, जो आप गुरबाणी को प्यार नाल सहज पाठ करांगे ना फिर आपां नूं गल समझ आऊगी, प्यार नाल पढ़न नाल आप भी क्या करो जी कल्ला काम नवेड़िया के बत्ते रुद्दे जी बस पाठ कीता फिर नहीं करना। जो प्यार नाल सहज पाठ करते हैं फिर पातशाह सानूं गुरबाणी दे विच समझाउंदे हैं कि अकाल पुरख परमात्मा कृपा करके की करदा सानूं गुरु कोले भेजदा, भाव गुरु दा मिलाप करवाउंदा है। आपां पंजां प्यारिਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੰਡੇ की बहुत शक्ति गुरु वाले बनते हैं, बने किवें अकाल पुरख की कृपा नाल। हुण परमात्मा ने कृपा करके सानू गुरु कोले भेजा ते गुरु ने की करना है, गुरु ने सानू सोझी देनी है। जिन्हों बादशाह लिखते हैं गुर मिल चज आचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। गुरु नूं मिल के आपां जीवन जिउण दा ढंग सिखना है। आपको सतनाम श्री और गुरबाणी नाम की गल करती है आपां की बाहरी कर्मकांडां दे विच उलझ के रह जाते हैं, कला मत्था टेकण तक सीमित है, बहुतात मुकाई या दुनियावी चीज़ां मंगण तक सीमित है। पर जेकर आपां टाइम कट के इत्थे आके सोची लवांगे कि पातशाह कह की रहे हैं जिउणा किवें है, संसार पद्धर ते किवें जिउणा है, किहो जे कपड़े पाउणे है, किवें खाना है, किवें होर काम धंधे करने आपां नूं पता है। लेकिन जिहड़ा मकसद लैके आपां संसार ते आए हैं ना वो भुल्ले गए। उस जिउण की जाच पातशाह सानू गुरबाणी दे विच सिखाउंदे हैं। सो इस करके आपां नूं टाइम कढना पैंदा। हुण देखो जिस तरह 6:30 टाइम हो गया भी जे आपां घड़ी मुताबक भी चलीए तो 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪਹਿਰ ਬਣਦੇ ਆ। 8 ਪਹਿਰ एक ਪਹਿਰ हो गया जी 3 घंटिਆਂ ਦਾ, रात का चौथा ਪਹਿਰ हो गया 3 ਤੋਂ 6 ਦਾ टाइम अमृत वेला जी ਪਹਿਰ ते बहुतात पकाई है जी उस वेले सौ रहे होंगे हैं। इस तरह काम नहीं चलता। भगत फरीद जी लिखते हैं कहते पिछड़ रात ना जागियो जीवन दड़ो मोयोए। जे तू रात के चौथे पैर अमृत वेले जेकर नहीं जागदा कहते तू तो जिंदा ही मरिया रहता है। सतनाम श्री भूमिका तैयार हो गई जी कि अपनी गल बढ़ूगी किवें। परमात्मा ने कृपा करके आपां नूं इत्थे भेजता, हुण पता आपां समझीए भी अपनी मर्जी नाल नहीं की कहदा बापू बादशाह कहते आपे संगत सद बहालै आपे विदा करावै। जो प्रेरणा दे के इत्थे संगत दे विच लैके आउंदा। और बेनती करा जिहड़े वीर भैणां पाठ कर रहे हो कोशिश करया करो जिस वेले गुरबाणी का कीर्तन हुंदा है या कथा हुंदी है या गुरबाणी का पाठ ही चल रहा होंदा उदों आप कोशिश कराया करिए कि एक वेले एक काम ही होता है। जो दो काम आप इकट्ठे करांगे इन्नी तो अपनी अवस्था ही नहीं उची कि दो काम इकट्ठे कर सके। हुण जो इधरों कथा हो रही है कन्ना दे विच कथा की आवाज़ पै रही है, शब्द की विचार की आवाज़ पै रही है कन्ना दे विच, उधरों आप की पाठ कर रहे हैं ना तो इधरली गल का पता लगना ते ना ही जिहड़ा पढ़ रहे हैं उसका पता लगना। सतनाम भी या तो कोशिश करो भी पहला दास आम करके कोशिश करता भी जिस तरह पिंडा रहते हैं तब ग्रंथी से कि स्पीकर लाने तो पहले ही नितनेम कर लो जाता है कर लो नहीं तुम बराबर बैठ के कर लो भी कहने तो भाव बराबर अपने आवाज ना होवे करना फिर अपना जो ध्यान है वो कागज नहीं होता। जिन्होंने गुरबाणी च कहा बद्धा चट्टी जो भरे ना गुण ना उपकार भी कला काम ही नवेड़े भी तेनू भुलेखा होर मैं पाठ कर लिया
लेकिन पता तो करन लगे ही। इस करके आप बेनती कर रहे हैं शुरुआत अमृत वेले तो करनी पैनी है, क्योंकि उदों मन रूपी ग्राउंड है जिहड़ा ये खाली होता है। जिवें जिवें दिन चढ़ी जाता उवें उवें होर काम धंधियां दा हम फिकर खाण लग गए, आप उधर उलझ जाते, छेती बंदा काहली करन लग गया। सो इस करके कोशिश की करनी है अमृत वेले की संभाल करनी है, पहले नहीं करनी। और उठ के करना की है, और सतगुर का जो सिख अखाए की करदा हो सो भल के उठ हर नाम ध्या। उन्हें पहला काम करना है परमात्मा का नाम लेना, और अपने अंदर एक रूल फिक्स कर लो भी पक्का रूटीन बना लो भी जिन्ना चਿਰ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ नहीं ना करते उन्ना चਿਰ ਆਪਾਂ कुछ भी नहीं खाना। और जो आप रूटीन बनावांगे फिर अंदरले ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ है कि मैं होर छेती उठा, जिन्ना छेती उठ के नितनेम करूँ उन्ना छेती ਮੈਨੂੰ खाण ਨੂੰ मिलूगा। जो ये पता होता है बिस्तरे 'ਚ बैठे ਨੂੰ सारा कुछ मिल ही जाना, फिर ये लेट करिए। सो इस करके शुरुआत करनी पैनी है अमृत। आओ नाल नाल ਆਪਾਂ शब्द ਦੀ उचार की साझी करने की कोशिश करते हैं। पंजवें पातशाह जी समझा रहे हैं, कहते हर राखी तू सच मैन सुनाई जो तो करे उदाहरण। और कहते सुंदर जीव रूप स्त्री है, मैं तेन एक सच्ची गल सुनानी है। और एक जीव रूप स्त्री दूजी को कह रही है पहला आप आरंभ बेनती की आप जिन्हें इतने बैठे हैं सारिया आप जीव रूप स्त्रियां परमात्मा साडा पति है गल इहदी गल समझ आ गई। हुण जिहड़ी सत संगत करन वाली नाम जपण वाली जीव रूप स्त्री है ना, हुण जिहड़ी सत संगत नहीं करती उहदे नाल गल कर रही है। की कह रही है हर नाखी को सच मैन सुनाई जो तो करे उदाहरण। कहते सुंदर जीव रूप स्त्रीए मैं तेनू ये सच्ची गल सुनाउणी है, सच्ची गल कहनी है कि जिहड़ा तेरा उधार बनूगा। हुण आपां इत्थे बैठ के की कर रहे हैं, निरोल सच की गल ही सुन रहे हैं। गुरबाणी निरोल सच ही है, पर बहुतात बुताई की कर रही है। पातशाह ने लिखा नहीं गुरबाणी के विच, कहते सुनी ना जाई सच अमृत गाथा रार करत झूठी लग गाथा। कहते दुनिया के लोगों को ना सच्ची अमृत कथा सुनी नहीं जाती। मैं इतने बैठना औखा लगता, बैठ भी गया शरीर करके बैठा, पर सारे आप एको जे नहीं माफ करें। अपन जो पांच उंगल अड्डो अड्ड थोड़ी कोई छोटी है कोई वड्डी है, विरले चढ़ती कला वाले मिलते हैं। जिन्होंने पातशाह ने लिखा एक नूं एक चढ़ांदियां कौन जाना मेरा नाम भी मता किते असीं भुलेखा पाइए कि असीं नाम जपदे हैं। संगत दे विच चढ़ती कला वाले भी बहुत होंदे जिन्हां दी अवस्था सुन करके इतनी उच्ची होती है भी बयान करन तो भी करे। चलो लेकिन बहुतात की करते हैं आप शरीर करके इतने बैठे होते हैं, मन करके बंदा करे पूरा बंदा काम करते करे अपना। उन्होंने बादशाह ने कहा कि जो शरीर करके इतने बैठा है, मन करके आपने काम धंधे करता करता पशुओं को पट्ठे पोदा करता दुकानदारी करता करता मन करके सुरत करके बाहर तुरया उन्होंने गुरु साहब जी कहते हैं वह हाजिर होंदा होया भी गैर हाजिर। एक जिहदा शरीर इजाजत नहीं दिंदा, या जिस तरह बाहर सिख है कोई पहरे की ड्यूटी कर रहा, कोई बाहर सेवा कर लिया लंगर हाल दे विच, लेकिन सुरत करके जुड़िया होया इत्थे नहीं बैठा शरीर करके, वो सुरत करके बाहर स्पीकर दे राही जुड़िया होया। हुण जिहड़ा सुरत करके जुड़िया उहनूं पातशाह कहंदे वो गैर हाजिर होंदा होया भी हाजिर हुंदा। सतनाम शरीर आपां की कोशिश करनी है भी जिन्ना भी टाइम बैठो इत्थे घड़ी अद्धी तो भी अद्धी घड़ी 6 मिनटां दी हुंदी है। हुण उन्ना टाइम भी बैठना तो तन ते मन थिर करके बैठना करना। जिन्होंने पातशाह ने कहा प्रभ की उस्तत करो संत मीत, किवें करनी है सावधान एकाग्र चीत, तन ते मन थिर होवे। हुण जो वैसे मन को टिकाउण दा एक तरीका है, आपां रसना नाल गुरबाणी का पाठ करिए, वाहिगुरू का सिमरन करिए, अपनी ही आवाज को अपने कन्नां नहीं सुनिए, सरवड़ी सुनिए रसना गाइए हृदय त्याइए सोई। हुण जो इस तरह आपां टेक्निक वरतांगे तरीका वरतांगे
फिर साडा जिहड़ा मन है वो टिक जाता। हुण टिकदा आके गुरु की हजूरी च ख्याल करो भी बेनती करा सकते आपां नाल भाई साहब कहते भी आपां जरूरी नहीं भी सारा शब्द ही विचारना भी जिन्ना हो सके जो आपां कोशिश करांगे। ठीक है, हुण आपां की करदे आ जिस तरह ये चलो इतिहासक गुरुद्वारा साहब पिंडां दे विच हर एक थां ते गुरुद्वारा साहब बने हुए, हर एक पिंड दे विच उपर वड्डे वड्डे स्पीकर लगे है। उन्हां नूं ऐ भुलेखा हुंदा घरे बैठिਆਂ भी जिहड़ी गल आपां गुरुद्वारा साहब जाके सुणनी है वो आपां नूं घरे ही सुणी जांदी है भी गुरबाणी दी तां होम डिलीवरी होई जांदी घरे बैठिਆਂ मंजे च भी आपां नूं गुरुद्वारे जाके बैठण दी की लोड़ है। ऐ भुलेखा ना आपां विच कईयां हुण इहनूं ध्यान नाल सुणिओ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੀ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, गाने बजाने भी चलते हैं और जो सारा सिस्टम आप घरा च देते उत्थे की है वाइब्रेशन मन नूं टिकाउण वास्ते की है काम नहीं कर सकती। उत्थे मन साडा नहीं टिक सकता भावें गल वही सुन रहा घरे बैठ के। इस करके आपां कोशिश करिया करिए चलो वैसे तो नहाना जरूरी है, कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय रहूगा बादशाह का हुक्म, लेकिन कई ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਠੀਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਹਾਈ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਐ ਪਿਆਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੇਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੈ ਨੇੜਤਾ ਵਧੀ ਜਾਣੀ। फिर जिवें प्यार वाले कवे ने भी जो 6 बजे आता जिमें जिमें प्यार वधीगा वो 5 बजे आने लग गया, 5 वाला 3 बजे आने लग गया, इस तरह करते करते गुरसिखा 12-12 बजे तो वो जी अवस्था है आप इस तरह साखियां सुनते हैं कहानियां सुनते सेध लैन वास्ते सुनते भी सुनते तो हाँ लेकिन अपनी साखी की तैयार हो रही है ज्यों तो आप भी रहे हैं कल आप भी संसार को जाना तो आप की करके गए हैं साखी तो सिक्ख्या लैके अपना जीवन बनाने की कोशिश करनी है जिन्हों बादशाह की कह रहे हैं कि सुंदर जीव रूप स्त्रीए मैं तेनों ये सच्ची गल सुनानी है जिहड़ा तेरा उधार करूगी। हुण आपां जिन्नियां इत्थे गल्लां कर रहे हैं ना इस नूं सुन के साडे जीवन का उधार होना क्या करो ये भी टाइम पास किया जा रहा है। बादशाह ने लिखा सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी भी जिथे नाम की गल है परमात्मा के नाल जुड़न की गल है नरोल सच की गल है उसे को सत संगत कहा जाता है। पर अपने विचों कई भीड़ तो प्रभावित है कि जिथे मतलब भी लख बंदा बैठा आप कहने उही संगत है भी थोड़े जणियां दा संगत होती इस तरह भीड़ तो आप कहने बस अड्डे ते कितनी होती है रेलवे स्टेशन ते किहड़ा थोड़ी होती है भीड़ का नाम। और महात्मा बुद्ध ने कहा कहते संसार ते सियाणे बंदियां दी तां भीड़ नहीं हुंदी भाव चंगे बंदे जिहनूं गुरबाणी कहदी है हैन बिरले नाही घणे फैल फक्कड़ संसार भी चंगे बंदियां दी संसार ते भीड़ नहीं हुंदी ते बाहली भीड़ दे विच सारे चंगे नहीं हुंदे। आखो सतनाम ते वो आपां चंगा बनने की कोशिश करनी है बिरला बनने की कोशिश करनी है। बनया किवें जाना है सतगुरु की कृपा नाल ते सतगुरु कृपा किवें करदे साडे ते गुरबाणी ज्ञान राही सानू सोझी करदे हैं। हुण आपां डॉक्टर कोले जांदे हां डॉक्टर की करदा अपना चेकअप करके ते दवाई लिख दिंदा
ਹੁਣ उस दवाई को जो आप मैडिकल तो लैके परहेज रख के खाने वरतने यूज करते तो आप की है डॉक्टर की कृपा नाल राजी हो नहीं कहने। इस तरह सतगुरु वैद को आप आए उधर रही शरीरक रोग की गल वैसे जो जिन्हों का प्यार आ वो भी गल भी वो भी ठीक ना हो जाती लेकिन जिहड़े मन के रोग है उन्हों की दवाई डॉक्टर नहीं दे सकता। जिहड़े चुपड़े हुए काम क्रोध लोभ मोह हंकार इन्हों का ताप चढ़िया ना मन विकारी होया फिरदा वो शब्द के भी बादशाह गल करते हुण उसकी दवाई सतगुरु वैद ने देनी है। हुण आपां की है इत्थे गुरबाणी तो सोची लैके भी दवाई लिखा ली पर्ची के कहण तो भाव नहीं करते दवाई लिखा ली पर लिखा के घरे ले उन्होंने ना तो वरती जे कोई वरतदा भी है गल करो कई की करते हैं तो सोची ले लेते हैं उस अनुसार चलना शुरू कर देते हैं पर परहेज नहीं रखते। इसका रिजल्ट की होता है भी आप 50-50 60-60 साल तो कथा कीर्तन सुनते हैं अपने अंदर तब्दीली क्यों नहीं होती। दस पिछले दिन दरबार साहब गया उत्थे एक संगत को मिलिया वो कहते असं संत भिडरा वालियां की संगत भी करते रहे तो अमर तो हजे तक नहीं सके फिर की कहांगे भी दोने काम साडे नाल चलते हैं आप कथा कीर्तन भी सुनते हैं तो फोन बाबा सारे को जेब च होता है बाहर निकलन सार या कार च बैठन सार बंदा गाने ला लेता हुण इत्थों कथा सुन के गया जाके गाने सुन ले हिसाब किताब का बराबर हो गया भी जे दवाई लेके आया डॉक्टर तो परहेज भी तो रखना पऊगा। और उदाहरण गल बड़ा सौखे तरीके नाल गल समझ लो भी जे किसी को खंघ लगी है दवाई दे के आया 4 शीशियां पी गया ते तले समान तो ठंडे तो परहेज नहीं रख लिया ते लोकां नूं की कहदा भी फलाना डॉक्टर नहीं कमदा उत्तों आराम ही नहीं आउंदा आराम तो पिंड वाले तो आ जाता झोला छाप तो ही लेकिन जेकर परहेज रख के दवाई वरतांगे ना फिर आराम होना ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਰ ਹੋਣਾ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹਿਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਤੁਮ ਸੁਣੋ ਛਬੀਲੀ ਫਿਰ ਤੈਡਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਿਹੜੇ परमात्मा की सिफत सलाह वाले वचन जो तू सुनेगी कहते ये की होगा कहते परमात्मा पति तेरे मन को आसरा देने वाला भाव के सहारा देने वाला टकाउण वाला हुण किते गुरबाणी दे विच लिखिआ मन समझावण कारणे कछु कपड़िए ज्ञान कहते मन को समझाउणा मन अपना भुलिया होया भटकिया हुआ आप भी कहते हरेक की प्रॉब्लम है किसी को मिलो पाठ का करते हैं जी मन नहीं टेकता गुरुद्वारा साहब बोलते हैं मन नहीं टेकता फिक्र ना करा करो जे नहीं टिक रहा चलो आप कई बाबा पता तो लगना लग गया आपको भी साडा नहीं टिक रहा ख्याल करो जिद्दे टिक गया ਉਹਦੇ ਦਾ ਭੇਦਤਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟਿਕਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਐ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਿਆ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਜੁੜ ਜਾ ਪਰ ਕਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ लेकिन भगत कबीर जी कहते हैं काल करता अबे कर अब करता स्वेताल पाछे कछु ना होएगो जो सिर पर आवे कार कहते बात च नहीं कुछ होना मतलब तू समझे भी फेर करे पर नहीं जो कहते काल ने आके मुद्दा फड़ लिया तेरा मौत ने सद्दा आ गया चल तो हो गया टाइम मन अपनी पूरी बिस्तरा बनते चलिए तो वो तो कुछ नहीं होगा। इस तरह की करना पैना
कल वाला काम अज करना पऊगा, जिहड़ा अज करना वो हुणे ही करना पैना, फिर काम चलना। तो आप बेनती कर रहे सां, आप दोने काम इकट्ठे करते हैं। बंदा इतने कथा विचार भी सुनता, गुरबाणी भी पढ़ता, तो दूजे गाने बजाने फिल्मां भी देखता। हुण ये जिहड़ा लचरपुणा वध रहा है, हुण गाने बजाने वाला फिल्मां वाला रुझान है, ये पिछले टाइम तुसीं बैकग्राउंड चैक करोगे ना, पुराने बजुर्गों को पूछो, वो कहते सी कि जिन्होंने चार पिंड तो बाहर ला दो आपदा है। हुण जिवें जिवें आपां ढिल नहीं रखी भी कुछ ना किया जवाकां नूं, भी नाल नाल जवाकां दी गिणती भी तां घटी गई, भी पहला 7-8 होंदे सी एक जवाक, फिर 4 रह गए, फिर 2 रह गए, हुण सारिਆਂ ਦੇ एक जवाक है, सारिਆਂ ਦੇ सारिਆਂ ਨੂੰ लाडला प्यार करदे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फसे होए, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਸਮਝਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਕਹੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਚੱਕਰ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। इसी तरह गुरबाणी ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਲਹਿ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਆ ਸਮਝ ਲਾ ਕਿਹੜੀ? ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌੜ ਛਕੈ। ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਖੋ। ਸਤਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਕਿਤੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਚੱਲਦਾ ਪੀਟੀਸੀ ਤੋਂ, ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਸਟ ਵੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਖ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਮ ਕੀ ਬਾतें दो चार ही होती हैं। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੋ ਵੀ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ।
शब्द की विचारना भाई साहब अकेली रहती हूँ गल नहीं करना किस ना इस करके आप जरूरी नुकते भी नालों समझ रहे हैं तो कोशिश की करनी है गुरबाणी को ध्यान नाल सुन के समझ के उस अनुसार चलने का करना तो आप बेनती कर रहे सा भी जिहड़ी गल सुनने विचों भुल गई ना उन्हें याद कराना पैंदा हुण आप जिन्ने इत्थे बैठे हैं जितों तक आवाज़ जा रही है हुण आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता ना भी अमृत वेले उठना चाहिए अमृत बाणी पढ़नी चाहिए अमृत छकना चाहिए रहत रखनी चाहिए हुण सारिਆਂ ਨੂੰ पता प्रचार को भी है वो गल क्यों नहीं करता वो आपको इन्हों का पता ही है ना मेनू गल रिपीट क्यों करना हुण पता आपको है लेकिन सुन जो भुल जाने आपको तो याद कराना पैंदा कम दीयां गल्लां दो चार ही है बाकी गल्लां दी बरात है जी हुण जे बरात दे विच लाड़ा ना होवे लाड़े दा प्यो ना होवे कम दे बंदे ना होण मेन चार कल्ली बरात नूं रोटी कोई नहीं दिंदा जेकर आप बाकी काम धंधे करते फिरते सारे धर्म के नाम से सारे काम धंधे करते फिरते मेन गल्लां अपने को है ही नहीं ना तो अमृत वेला ना अमृत बाणी पढ़ते ना रहत रखते ना अमृत छके बाकी सारा कुछ ही करते हम तुम समझते हो कि सारे कुछ के विच की होंदा धर्म के नाम से जिन्ने भी काम है फिर वो की है वो बरात नहीं फिरते कल्ली काम के बंदे ही नहीं लेकिन खेड किन्ना दी बननी है मेन गल्लां फॉलो करिए इस करके आप बेनती कर रहे हैं 10वें पातशाह का हुक्म है साडे वास्ते पता सारिਆਂ ਨੂੰ है दोबारे सुन लो प्रथम रहत यह जान खंडे की पहुल शकै सोई सिंह प्रधान अवर न पहुल जोड़ है कहते सिखा तेरे वास्ते पहली रहत है भी तू खंडे वाटे का अमृत छकना है बाकी दी गल्लां बात कर छकना क्यों जरूरी है चलो फिर आप भुल ना जाइए बेनती कर दी टाइम होना भाई डल्ले ने पूछा सी पातशाह जी कहना मेरे ते जेकर बहुत ही खुश होए अपने चरणों के विच पीढ़ी की जितनी थां दे दो मैंने गुरु साहब कहते डलिया तेरा भी छकियागा अमृत तू कहना पीढ़ी जितनी कहते तेनू नहीं मिलती 1 इंच ते जे तू अमृत छकदा है कहते फिर तू पीढ़ी जितनी मंगेगा फिर भावें मंजा डाली आखो सतनाम ठीक है जी हुण इस तरह मंगते तो आप भी लेकिन चरणों के विच थां लैनी है जेकर फिर उहदे वास्ते खंडे की पौड़ छकनी पैनी पहले कईयां नूं भुलेखा हुंदा है जी भी असीं केस दाड़ियां रखे हुए हैं खाते पीते असीं कुछ भी नहीं भी साडा तां अमृत छकिया वर्गा ही है फिर गुरुद्वारा साहब भी आउणे हैं खाते पीते भी कुछ नहीं नाई कोले भी नहीं जाते इस तरह भाई दयालदास नूं पै गया जी भुलेखा की कहंदा कहंदा पातशाह जी मेरा तो अमृत छकिया वर्गा ही है कि मेरा डंग ले लूं गुरु साहब कहते वेख दयालदास कहते मैं अमृत छकिया ना कहते मेरा डंग ना लिया तेरा लेंदा था लादा सतनाम श्री तो चलो रहो विचार एक पंक्ति चलो आप और विचारते बादशाह कहते दुर्जन सेती ने हो रचायो 10 बिखा में कारणा कहते जीव को पिस्तरीए तू परमात्मा को भुला के भी होर लालचां दे विच फस गई भाव दुर्जनां दी संगत करनी शुरू कर दी भी की कारण है मैनूं दस के मैं दस हुण दुर्जन किहड़े है जिहड़े वैरी है साडे वैरी किहड़े एक तां बाहरी तौर ते आपां लोकां नूं वैरी मनदे कि मैं फलाने बंदे करके दुखी लेकिन आपां दुखी किसे करके गुरबाणी च की लिखिआ दद्दै दोष ना देऊ किसै दोष करना अपनिया जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना कीजै अवर जै कि आपां कीते हुए कर्मां करके दुखी है कर हुण आपां जिन्ने भी संसार से जन्म लेके आए हैं कीते हुए कर्मां दा फल भोग के आए हैं इत्थे हुण जिहड़े इत्थे चंगे माड़े आपां कर्म करांगे चंगियां दा चंगा फल मिलना माड़ियां दा माड़ा मिलना इस करके पहले नंबर ते तां चंगे काम करने शुरू करिए हुण जिहनूं आपां आम करके गाना ही सुण लेंदे हैं भी संगत दे विच कौन आके बैठदा है जिहदे भाग चंगे नहीं सुणदा हुण भाग चंगे एक तां हुंदी है प्रारब्ध भी पिछला कर्म कोई चंगा करया उहदे अकॉर्डिंग इसे जन्म दे विच अकाल पुरख दे नाल जुड़न दा मौका मिल गया
दूजे नंबर पे बंदा वो जुड़ता है जिहड़ा चंगे कर्म करता है इस संसार में। ख्याल करो हुण एक वो जुड़ूगा। हुण जिहड़े अपने विचों कई रह गए कि घरे बैठे कई ਡੀਕਦੇ आ, असीं मिलते रहते वो भी कहते साडे ते भी होऊगी किरपा, परमात्मा करूगा किरपा, असीं भी अमृत छकांगे, करूगा किरपा परमात्मा, असीं भी गुरुद्वारा साहब आया करेंगे। भी किरपा नूं बैठे ਡੀਕੀ जाने आपां घरे कलगियां वाला बापू घोड़े ते चढ़ के आऊ, फिर साडे ते किरपा करू, फिर मैं मंजे तो खड़ा होकर गुरुद्वारा साहब आऊँगा, फिर मैं केस दाढ़ी रख के अमृत छकूंगा। हुण एक आपां बेनती कीती भी एक दा तां कर्म चंगा पिछला वो तां जुड़ गया, दूजा चंगे काम करदा वो तां जुड़ गया, तीजा जिहड़ा रह गया ना उहनूं की करना पैना, उहनूं इत्थे आके मंगना पैना है। आपां गल दी शुरुआत कीती सी भी पातशाह जी जे साडे भागां दे विच नाम जपना, सत संगत करना, बाणी पढ़ना नहीं लिखिया, किरपा करके हुण लिख दिओ, आखो सतनाम। तां इत्थे आके मंगिया करिए, कोशिश करो कि कई वीर बाहरों भी आए आपां होर भी किसी दिन अनंदपुर साहब जाना चाहो, कदे भी आपां सतगुरां दा दर्शन करिए, रोजाना ही मंगना बस, जिन्ना चिर किरपा नहीं ना होंदी रोजाना मंगिया करो बस। रोज आके थे तरला तरले मिनटा करांगे, बेनतियां करांगे, फिर पातशाह किरपा करो। और आपां आखांगे भी पहले वाले कहण ते क्यों नहीं कर रहे, ये भी तो गल समझण वाली है ना। क्वेश्चन को बंदा मन दे विच भी रोज रोज कहण दी की मतलब है आपां एक बार आखदा भी बापू ने किरपा करने से पहले ही नहीं कर दूंगा। जिन्होंने विद्वान सज्जन ने राइटर ने लिखा है, कहते खुदा करता है मंजूर दुआ जब दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है जे बड़ी मुश्किल से होती है। अरदास आप सारी करने हैं और कई बार की है कली जबान बोल रही होती है, बच्चों अंदरों नहीं कह रहा होता बंदा। इस करके आप बेनती कर रहे हैं भी रोजाना ही कहना है, इत्थे आके रोज तरले लेने हैं पातशाह मेरे ते भी किरपा करो, कदे तो अंदरों अरदास निकलूगी, जो अंदरों निकल गई वो हथ की तली ते लई बैठा है, कहते पुत तू मंगदा सही, मैं तो हथ की तली ते लई बैठा मंगदा सही, फिर देड़ दे विच देरी नहीं करता, सतनाम कर ले जा करके। ये जिहड़ा मनुखा जन्म है बार बार नहीं मिलदागा, जिन्हां नूं सोझी आ जाती है ना, बापू ने लिखा जिन्नी चलण जाणिया से क्यों करै कथार, चलण सार न जाणनी काज सवारन हार। हुण आपां सारे रुझे होए ना, ये नहीं भी काम धंधे करने नहीं करने हैं, पर कईयां कोले जमा ही टाइम नहीं कढदे, हो उन्हां नूं काम दी गली हुंदी तड़की, मैं उन्हां वास्ते पातशाह कहते जिन्हां नूं सोची आ गई ना